Hi everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to your CFA prep. So, sir, we have been able to complete corporate issues, we have completed ethics, and sir, now we are moving to the third most chunky subject, that is equity. So, sir, equity is almost 11 to 14% of your syllabus in CFA level 1, equivalent to what you studied in FSA. And we know FSA is so bulky. Equity is a bit less bulky, yes, very theoretical at places, but also practical at places. But at the same time, it will give you a lot of exposure, very, very technical as a subject, and very foundational to move ahead towards CFA level 2, level 3, and your basic knowledge in finance. Okay? So it is very, very fundamental to understanding. That is why we are starting with equity. आई होप अभी तक जो जो भी हमने किया है corporate issuers ethics, you've been able to give all the tests, our concepts are clear, you've been able to solve all the questions from the question bank. In case you have any query, please reach out, and I'm always available for any query resolution, any doubt resolution. You know, there could be some lag in replying, maybe a day, but you will get all your queries resolved. ठीक है? बताओ सर, आगे बढ़े यहाँ से, यहाँ तक इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, बताओ। एनीथिंग सर, आगे बढ़े। डन, कूल। ठीक है सर, वी हैड डन कॉर्पोरेट इशूअर्स, करेक्ट सर। व्हाट हैड वी स्टडीड इन कॉर्पोरेट इशूअर्स? सर कॉर्पोरेट इशूअर्स में वी हैड अंडरस्टूड हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, करेक्ट सर। हाउ कैन इट रेज कैपिटल, हाउ कैन इट रेज कैपिटल, या स्पेसिफिकली फ्रॉम वेयर कैन इट रेज कैपिटल? More than how, we had studied, sir, from where can it raise capital? Yes, sources of capital, sources of capital, correct. And sir, हम जब capital raise करते, there is a charge that we have to pay. सर equity के लिए अलग होता है, debt के लिए अलग. तो if we take a blended rate, we take that into account and we call it WACC, that is weighted average cost of capital. तो capital का cost है, उसको हम average out करते हैं by the weights that we are using. मतलब हो सकता है 60-40 के प्रोपोर्शन में यूज़ कर रहे हो, 30-70 के प्रोपोर्शन में, तो उस हिसाब से विल गिव डिफरेंट डिफरेंट वेट्स. एंड सर WACC का क्या इफेक्ट होता है सर ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ अ फर्म, करेक्ट सर। हमने ये पढ़ा था इन कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर हमने अलग अलग टॉपिक्स भी पढ़े थे अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. अब हमने कैपिटल रेज कर लिया है, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे सर? याद आ रहा है सर? रेगुलेटरी प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं, एंड देवर सेपरेट लाइन्स ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं, वेर इन वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू समथिंग ऑल टुगेदर न्यू, करेक्ट सर. एंड देन वी हैड आल्सो अंडरस्टूड अ शॉर्ट टॉपिक ऑन सर बिजनेस मॉडल्स कि सर व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, so what all go into its consideration? There are 5 questions: what is the product, who are the customers, where are we providing for the product, do we have online presence or offline presence, correct, what is the price of the product, and while selling the product, are we taking the assistance of any suppliers, are we taking the assistance of any other relationships or maybe suppliers, assets and people around, correct sir. And then उसके बाद सर हमने पढ़ा था about ethics, correct sir. What did we study in ethics? Sir, our role as investment professionals, sir, how should be our role? It should be, sir, very very trustworthy, correct. It talks about, sir, managing money. It talks about, sir, managing money. How should be our role, how should be our conduct, जिसमें हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. आर रोल इज़ वेरी वेरी क्रूशल, आर रोल इज़ वेरी वेरी पिविटल टू द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, करेक्ट. अगर हम नहीं हैं, हमारी जो डीलिंग है वो एथिकल नहीं है, वो मॉरली करेक्ट नहीं है, अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वी हैड यूज 2 words सर, वी हैड यूज सर ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी प्लस कम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कम्पिटेंट जो भी सर. So we had used these 2 words. अगर these two things are missing, sir, in us as an investment professional, तो sir कहीं ना कहीं we have failed, है ना, and we are not giving our duty, we're not doing it in the best of the spirits, correct sir. अब सर इसके बीच में सर there is a connecting link. सर what is the connecting link? अभी बढ़ते हैं सर. अरे सर एक मिनट, 1 minute सर. सर इसमें
एंड इसमें सर देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या है सर वो? अब सर यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट रेजिंग मनी, करेक्ट? हमने रेज किया पैसा। सर कहाँ से रेज करेंगे इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। कहाँ, किसके पास जाएंगे सर? बैंक्स के पास जाएंगे हम कि सर आप पैसे दे दो, इंटरमीडियरीज के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे कि सर आप हमें पैसा दे दो। तो सर हम कहाँ जाएंगे सर? हम एक मार्केट में जाएंगे, करेक्ट? तो मार्केट में जाएंगे एंड सर ऐसी मार्केट जो पैसों में डील करती है, फाइनेंस में डील करती है, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। सर समझ में आया यहाँ तक? सर समझ में आया यहाँ तक वो व्हाट इज द एंटायर कनेक्शन ऑफ व्हाई वी आर स्टार्टिंग इक्विटी नाउ? तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट वी आर स्टडिंग एंड वी आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, करेक्ट? यस सर समझ में आया। सर सेकंड इज सर व्हेन वी आर डीलिंग विद फाइनेंशियल मार्केट विद इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कि क्या हमने कमाया या क्या हमने गवाया। तो सर वी ऑल्सो टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ओवर हेयर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, करेक्ट सर? समझ में आया यहाँ तक? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Sir, whenever we are dealing with equities, whenever we are dealing with equity investments, it is something that is traded on the market. हम पढ़ते हैं रिलायंस के शेयर्स, महिंद्रा के शेयर्स, टाटा मोटर्स के शेयर्स। दिस इज समथिंग दैट वी कीप ऑन हेयरिंग। तो सर इसकी न्यूज़ मार्केट में होती है, करेक्ट? तो सर कितनी न्यूज़ मार्केट में होती है? अगर कोई नई न्यूज़ आई कि रिलायंस इज एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर with Blackstone, or Reliance is coming out with Jio Financial Services, or Reliance is coming out with some other product altogether, जैसे अभी पीछे it started it ventured into Campa Cola का business, it revived its business। तो सर इसका क्या impact होता है कंपनी पे, कंपनी के शेयर प्राइस पे, कंपनी के फंक्शनिंग पे? कोई इफेक्ट होता है? कोई स्ट्रैटेजी पे कोई इफेक्ट होता है? Yes, sir, there is a big effect of news. So, sir, how is this news transferred, या how does this news gets transformed into the equity share price जो हम देखते हैं as investors? तो सर हम बोलते हैं उसको market efficiency, कि सर how efficient is the transformation of news into the share price? तो समझ में आया यहाँ तक? बताओ सर, आगे बढ़े। सर इसके बाद what the institute has given, they have given an overview of equity securities, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, जहाँ पे वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी सर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसका क्या रोल है सर, व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, व्हाई इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट क्लास, व्हाई इज इट अ गुड एसेट क्लास, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए सर, इसके रिस्क रिटर्न के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरीथिंग। इसका क्या रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक रहता है, कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी हम कमा पाएंगे, कैसा रिस्क रहता है, एवरीथिंग। ठीक है सर? अब सर ये इफ़ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम आर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी कंपनी। बट सर व्हेन वी आर डीलिंग विद many things around, so sir we are also affected by our neighbors, we are also affected by our competitors. So that is why sir what comes into context, sir, we start doing our company analysis. We do company analysis, something known as we compare our company with others, compare with others and with our own past, कि हम देखते हैं कि सर हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, कि हम दूसरों के साथ अब ही हम कैसे हैं इन कंपटीशन। सर समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से? सर यहाँ तक कोई क्वेरी? अब सर ये व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद आवरसेल्व्स इज वन एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद अदर्स इज अनदर थिंग। यहाँ पे वी आल्सो स्टडी अबाउट इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस। ठीक है सर, समझ में आया? तो सर यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग विद अदर्स, कंपेयरिंग विद अदर्स, एंड सर यहाँ पे टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक वी आर कंपेयरिंग विद आवर ओन पास्ट। सर समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़े। अब सर हम कंपेयर कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि हाउ हैव वी परफॉर्म्ड, करेक्ट? अब सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सर हम जो भी पढ़ रहे हैं बी एड लाइक, इसके बाद वील स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, वील स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वी हैव डन एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस,
तो सर जो भी हम कर रहे हैं इट इज सो दैट वी आर एबल टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टेक जजमेंट कॉल्स की फ्यूचर में हमारी अर्निंग्स कैसी रहेगी। वी लुक एट द पास्ट, वी लुक एट द प्रेजेंट, हम और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी मेक जजमेंट कॉल्स फॉर द फ्यूचर, वी मेक फोरकास्ट्स। सर दैट इज व्हाई वी हैव अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है सर, एंड सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ चैप्टर इन रियल लाइफ, क्योंकि एज एनालिस्ट एज पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर रोल जितना स्ट्रॉन्ग इज इन फोरकास्टिंग, वी आर एबल टू शेयर आर ओपिनियंस एंड व्यूज विद अदर्स। एंड सर इसी चीज़ की ही मार्केटेबल वैल्यू है आज की डेट में। विद वॉट कन्विक्शन आर वी एबल टू शेयर आर व्यूज ऑफ द फ्यूचर विद अदर्स। सर समझ में आया? सर इससे मिलता जुलता एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। सर ये हमारा एक एफएसए का चैप्टर है, बट इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग ओवरलैप, अ वेरी बिग ओवरलैप विद फोरकास्टिंग, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट ओवर हेयर इन इक्विटी। सर समझ में आया? दिस वाज अ एफएसए चैप्टर बट वी have updated and we are taking this with equity. Why? Because it has a very very big overlap. ठीक है, तो समझ में आया? एंड सर लास्टली we talk about equity valuation. Equity valuation कि सर हम इतना सुनते हैं कि सर वैल्यूएशन क्या होती है कंपनीज की, इसकी ये वैल्यू है। अब लेंसकार्ट इज गोइंग फॉर 70,000 वैल्यूएशन, 70,000 करोड़ वैल्यूएशन बिफोर कमिंग फॉर इट्स आईपीओ। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएशन? जब हम ये वर्ड बोलते हैं वैल्यूएशन, कल को सर कंपनी का शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस आउटसाइड टुडे इज 1200 रुपीज़। आपको अगर खरीदना है तो सर 1200 रुपीज़ दो आप, और आपको एक शेयर मिल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब सर वाई इज इट 1200 ओनली सर? वाई नॉट 1100? और सर वाई नॉट 1400? करेक्ट सर, इस 1200 के अंदर क्या क्या फैक्टर्स गए हैं सर? कुछ तो फैक्टर्स गए होंगे ना सर। इनका सर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, सर इनका जियो हॉटस्टार का बिजनेस है, इनका सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, इनका कैंपा कोला का बिजनेस है, कितने सारे बिजनेसेस में सर ये है। बट सर कौन कौन से फैक्टर्स हैव गॉन इनटू डिटर्मिनिंग दिस 1200 की वैल्यू, ये हम पढ़ेंगे सर इन इक्विटी वैल्यूएशन। A very very important topic. This will go into our level 2, and so level 2 is full, very very full blown into valuation, very very practical, very very practical and sums oriented, questions oriented या sums oriented, जहाँ पे calculation आएगी, sum oriented। तो समझ में आया यहाँ तक? बताओ सर यहाँ तक do we have any query? Did we understand the entire overlay sir, how the entire chapter, how the entire subject is given to us? सर जो फाइनेंशियल मार्केट है ना सर, इसका जो नेम है एज पर द इंस्टीट्यूट नेम, इट इज़ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। एंड सर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब हम कंपेयर करते हैं या अपनी खुद की कैलकुलेट करना करना होता है, उसको क्या बोलते हैं सर? वी डू इट यूजिंग सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस। ठीक है सर, बाकी सर वी अंडरस्टूड सर हाउ न्यूज़ गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शेयर प्राइस। तो सर ये जो प्रोसेस है इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो न्यूज़ है, हाउ व्हेन दिस न्यूज़ गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइस। अब ये जो 1200 का शेयर प्राइस हमने बात करी थी सर, सर कितना इसमें हो सकता है? आज सुबह रिलायंस की एक न्यूज़ आई होगी कि ईशा अंबानी इज गोइंग टू बी द न्यू डायरेक्टर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या शी इज़ गोइंग टू हेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज एन एंटिटी। तो सर इसका जो इम्पैक्ट है सर इस न्यूज़ का 1200 पे कितना है, आ चुका है, आने वाला है, कितने टाइम में आएगा, धीरे धीरे आएगा, हाउ हैज़ द मार्केट रिस्पॉन्डेड टू दैट न्यूज़, सर हम पढ़ेंगे सर इन दिस चैप्टर मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, बट सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस, before we are able to start all this, is to understand what is equity. What is equity? That is why sir the chapter that we are starting today is overview of equity securities. Overview of equity securities.
तो समझ में आया यहाँ तक? इज एवरीवन देयर विद मी? आगे बढ़े। ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। सर यहाँ तक एनी क्वेरी? क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर, इसका रोल क्या है सर, सब समझ में आया? तो सर इन इक्विटी वी हैव अ टोटलिटी ऑफ 9 चैप्टर्स। 9 चैप्टर सर कैसे सर? 8 अपने इक्विटी के ही +1 जो हम एफएससी से करेंगे। तो समझ में आया? तो सर इसके क्वेश्चंस भी आपको इक्विटी के ही मॉड्यूल में ही मिल जाएंगे। जो इक्विटी का हमारा क्वेश्चन बैंक है ना सर, यहीं पे ही मिल जाएगा आपको। एफएससी का क्वेश्चन बैंक रेफर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू विल गेट इट ओवर हियर। तो समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। एनी क्वेरी? शैल वी मूव अहेड सर? बताओ। आगे बढ़े। ठीक है सर, लेट अस मूव अहेड। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी? सर अगर मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूं, 1 वर्डेड आंसर सर, 1 मार्क का क्वेश्चन आया सर, व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी? इक्विटी मीन्स ओनरशिप। Simple, sir. Equity means ownership in something. What is that something? Let us understand. Sir, there are 4 friends. Sir, 4 friends है sir. कौन-कौन sir? कुणाल, रोहित, निखिल एंड सर आर्यन। ठीक है सर? ये सर आईआईटी ग्रेजुएट्स है सर, साथ में सर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे ये स्कूल में। सेम इंजीनियरिंग की सर ट्यूशन में गए थे ये लोग। सर वहाँ पे एज फ्रेंड्स मिल गए एंड देन सर आफ्टर कॉलेज सर दे केम अप विद एन आइडिया टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर कम क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनी। ठीक है, तो सर इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? सो द नेम ऑफ द कंपनी इज ब्लू वेव टेक्नोलॉजीज। ठीक है सर? तो सर देवर दीज 4 फ्रेंड्स सर, कुणाल, रोहित, निखिल, आर्यन। सर दे हैड स्टार्टेड दिस कंपनी। सर क्या सर्विस प्रोवाइड करती है सर? सर दे प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर कम क्लाउड, जो भी सर्विसेज होते हैं रिलेटिंग टू दिस। ठीक है सर? मेजरली सर ये किसका आइडिया था या कहाँ पे स्टार्ट हुआ था सर? ये सर कुणाल ने आइडिया डिवाइस किया था सर कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सर वेयर डिड दिस स्टार्ट? कहाँ स्टार्ट हुआ सर? ये कुणाल के छोटे से अपार्टमेंट में सर ये बैठे हुए थे लोग सर, वहाँ पे इन्होंने ये आइडिया सोचा एंड सर दे केम अप विद दिस आइडिया टू स्टार्ट अ कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्लू वेव टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ऑल सर्विसेज सर जो भी आप सोच सकते हो रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक, इनेबलिंग एवरीथिंग सर। अब सर धीरे धीरे दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू एआई, जनरेटिव एआई दे वांट टू मूव इनटू, मशीन लर्निंग दे वांट टू लर्न इनटू सर, क्योंकि ये बस टर्म्स है सर, इसके लिए इसको इनको रिसर्च करनी पड़ेगी। करेक्ट? उनको सर स्टडी करनी पड़ेगी, उनको सर लोगों से मिलना होएगा, उनको सर इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी ताकि दे आर एबल टू यूज़ दिस एंड गिव सर्विस टू सर स्मॉल कंपनीज या मीडियम कंपनीज। जो भी छोटी मोटी कंपनीज है सर दे स्टार्ट कहीं ना कहीं तो वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम से कोई बड़ा क्लाइंट तो इनको मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब बट सर इनको चाहिए सर 15 करोड़ ऑफ मनी। सर ये इनकी रिक्वायरमेंट है सर कि इनको सर 15 करोड़ ऑफ रुपीज़ चाहिए कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको पैसा मिले एंड देन दे आर एबल टू डू देयर ओन रिसर्च, दे आर एबल टू मेक अ प्रोडक्ट, दे आर एबल टू स्टडी अबाउट इट एंड दे कैन यूज़ दिस। सर किसके लिए सर? सो दैट दे कैन हेल्प स्मॉल कंपनीज और मीडियम कंपनीज। सर यही तो है सर, यही तो प्रोडक्ट है इनका। समझ में आया? तो सर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन यूज़ लाने के लिए इसके ऊपर अगर कुछ थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट डालनी पड़ेगी, उसके लिए सर दे नीड 15 करोड़ ऑफ अमाउंट। ठीक है सर? समझ में आया? सर बट ये 15 करोड़ ऑफ अमाउंट सर कहाँ से लेकर आएंगे? किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं। क्यों सर? क्योंकि दीज ऑल आर सर कॉलेज फ्रेंड्स। सर है तो ये आईआईटी कॉलेज वाले लोग ही तो हैं ये। तो सर इनके पास अभी तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड,
अभी तो एक कॉलेज में ही है, तो सर दे आर थिंकिंग ये पैसा कहाँ से रेज कर सकते हैं। तो सर देर आर टू वेज टू रेज मनी, आइदर दे टेक अ लोन, तो सर ये 15 करोड़ का लोन ले लेंगे, बट सर 15 करोड़ का लोन ले लेंगे, इनको सर रीपे भी करना पड़ेगा, रीपेमेंट करनी पड़ेगी सर। कैसे कैसे सर, एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी सर, दूसरे इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, या जो भी अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स होएगी सर। अगर वो बोले 6 मंथली आपको पे करना है इंटरेस्ट, तो 6 मंथली। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है तो क्वार्टरली, अगर ईयरली पे करना है तो आपको ईयरली पे करना पड़ेगा। तो सर यू कैन आइदर गो बाय द लोन मेथड, जहाँ पे आप लोन ले रहे हो, या सर दूसरा वेयर यू कैन इशू इक्विटी। एंड सर व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी, हमने ऊपर पढ़ा सर, इक्विटी मतलब ओनरशिप। तो सर अगर दिस इज 100% ऑफ ब्लू वेव टेक्नोलॉजी से, जो भी ये कंपनी है दैट दीज फोर हैव डिवाइस, तो सर इतना चंक अबाउट 10% के आसपास सर ये दे देंगे सर, 15 करोड़ ये रेज कर देंगे, ठीक है सर। एंड सर दे कैन गिव 10% इन एक्सचेंज। अब सर ये किसी से भी रेज कर सकते हैं सर, इनका हो सकता है सर कोई फ्रेंड हो जिसके पास बहुत पैसा हो सर, इन केस यू हैव एडिशनल फंड्स, तो सर फ्रेंड्स आर एबल टू लेंड। सर देर आर एंजल इन्वेस्टर्स who come as angels and who invest in our money, so they can go to Shark Tank, जहाँ से वो पैसा रेज कर सकते हैं सर। व्हाट इज शार्क टैंक? शार्क टैंक सर उसको आप समझ लो प्राइवेट इक्विटी फॉर द मीन टाइम। जब हम बोलते हैं सर प्राइवेट इक्विटी, विल अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अबाउट शार्क टैंक। जो भी हमने शार्क टैंक के बारे में हमें पता है, वी ऑल्सो डिड अ पार्ट ऑफ इट इन कॉर्पोरेट इशूअर्स, बट वी विल डू अगेन, थिंकिंग कि हमें कुछ नहीं आता, वी विल रीस्टार्ट। ठीक है सर, प्राइवेट इक्विटी से रेज कर सकते हैं, फ्रेंड से रेज कर सकते हैं सर। देन कम्स द मेन थिंग सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज कर सकते हैं सर। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर जैसे कि बैंक्स या NBFCs होते सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो सर बैंक्स नहीं होते बट दे गिव यू लोन, जैसे सर मुथूट फाइनेंस। सर ये मुथूट फाइनेंस के पास जा सकते हैं सर, वो बोल सकते हैं कि सर आप प्लीज़ हमें 15 करोड़ रुपीज़ दे दो और आप 10% हमारी कंपनी में यू कैन टेक आर स्टेक, दिस इज नोन एज टेकिंग अ स्टेक। तो सर पहले जो 100% स्टेक था, 100% स्टेक था 4 फ्रेंड्स में, करेक्ट। अब सर ये 100% स्टेक हैज़ बीन स्प्लिट इनटू ये 4 फ्रेंड्स प्लस अनदर शेयर होल्डर। तो सर इफेक्टिवली क्या रहा सर, इफेक्टिवली सर ये रहा सर 90% था, एंड सर ये 10% हो गया। ये पहले पूरा 100% इनके पास था। तो सर इसको क्या बोलते हैं सर, जो हमारा 100% का ओनरशिप था दैट हैज रिड्यूस टू 90, सर दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप बोल दो, कंट्रोल बोल दो, क्योंकि सर जो ओन करता है सर, जो ओनर होता है सर, डिसीजंस कौन लेता है सर, ओनर लेता है। बट सर अब जैसे जैसे ओनरशिप कम हो रही है, कोई दूसरा बंदा आ रहा है, तो सर उसकी भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी होगी सर। तो दैट इज वाई वी कॉल दिस टू बी डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल। सर समझ में आया यहाँ तक? व्हाट डू वी मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल? यहाँ तक कोई क्वेरी है? आगे बढ़े सर, बताओ सर। अब सर ये जो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल है, या ये जो भी इक्विटी रेज किया इन्होंने, रेजिंग इक्विटी, रेजिंग मनी थ्रू इक्विटी, रेजिंग मनी वाया इक्विटी कैन हैपन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट सोर्सेज? सब पढ़ेंगे सर, सब समझेंगे अभी सर। सर फर्स्ट सोर्स क्या है सर? सर ये जो हमारी कंपनी है, कौन सी कंपनी सर? ये सर ये जो हमारी कंपनी है ऑफ, इसमें जब हमने ये अपना स्टेक सेल किया ना, हमने जब अपना स्टेक दिया, इट वाज इन एक्सचेंज, हमने स्टेक कैसे दिया सर? बाय वे ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर्स।
So what do we mean by common equity shares? So common equity shares is pure ownership. प्योर ओनरशिप सर. अब ये सर जो भी ये एडिशनल बंदा आया है जिसने हमें पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम है सर मिस्टर प्रसाद. सर मिस्टर प्रसाद आए हैं, उन्होंने हमें रुपीज़ दिए 15 करोड़ और 10% स्टेक. सर नाउ वी आर अवेयर व्हाट डू वी रुपीज़ 15 नहीं सर 15 करोड़. सर नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेक, व्हाट डू वी मीन बाय डाइल्यूशन. ये छोटी छोटी टर्म सर, नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट. तो सर व्हेन वी आर इशूइंग ये स्टेक, तो सर हाउ कैन वी इशू स्टेक? Issuing stake in the company to raise funds. यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो सर दिस इज फर्स्ट बाय वे ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर्स. सर समझ में आया? बताओ सर, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेरी है? बताओ सर. तो सर नाउ ये जो मिस्टर प्रसाद है, ही बिकम्स एन ओनर इन ब्लू वेव टेक. So what does he become sir? He becomes a part owner. 4 लोग तो थे ही पहले सर. जो 4 लोग थे, जो 4 फ्रेंड्स थे सर, कुणाल, रोहित, निखिल, आर्यन, वो तो थे ही थे, +1. तो अब सर ये 5 लोग हो गए हैं. अब सर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं सर, इनकी पेक्यूलियरिटी या इनका फीचर क्या होता है सर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ओनर बनते क्यों हैं सर ये? इनको क्या शौक होता है सर ओनर बनने का? सर दे हैव रेसिडुअल क्लेम्स. सर रेसिडुअल क्लेम्स, सर व्हाट डू वी मीन बाय रेसिडुअल क्लेम्स भी बताते हैं सर. सर दे हैव रेसिडुअल क्लेम्स ऑन सर स्पेसिफिकली 2 थिंग्स सर, प्रॉफिट्स एंड एसेट्स लिक्विडेशन. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं आराम से, ठीक है. अब सर लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ब्लू वेव टेक जो ये कंपनी है, सर इट हैज़ बिकम अ मैसिव सक्सेस. सर हाउ डिड इट बिकम अ मैसिव सक्सेस? सर इट वेंट इनटू एआई, इट वेंचर्ड इनटू एआई. बहुत सारा एआई के एप्लीकेशंस या टूल्स लेकर आ गई, बहुत मार्केटिंग करी सर. सर इट वेंट इनटू मशीन लर्निंग, इट स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स, लैंग्वेजेस यूज़ करने लग गए थे सर. करेक्ट सर. एंड देन दिस गेव यू एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है सर. यूज़र्स को सर सब्सक्रिप्शन या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सपीरियंस देने लग गए थे. तो सर इट बिकेम अ मैसिव सक्सेस, बहुत सारे लोगों को पता चलने लग गया था. तो सर एट वन स्पेसिफिक ईयर उनका रेवेन्यू कितना था सर? उनका रेवेन्यू था से सर 10 lakhs. उनका और कोई अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा सर? यूजुअली सर जो भी इनका डेटा सेंटर होता है या सर जो भी डेटा मैनेजमेंट होता है वो करेंगे सर. जो भी इलेक्ट्रिसिटी, चिप्स और ये सब जो भी डेटा इनका सेंटर होता है टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर एआई एमएल या एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑल्सो. तो सर ये सोच लो सर, इट इज़ फॉर एग्जांपल सर 6 lakhs. करेक्ट सर. ये माइनस किया, कितना प्रॉफिट आया सर? 4 lakh. अब सर कुछ हो सकता है सर, कंपनी के कुछ सैलरीज होंगी, कुछ ओवरहेड्स होंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, कुछ एडिशनल जो भी है जैसे रेंट, यूटिलिटीज़, सर सब माइनस करने के बाद सर ये 1 लाख है. हमने ये सब माइनस कर दिया. अब जो सर नेट प्रॉफिट रह गया, नेट प्रॉफिट इज़ 3 lakhs. अब सर ये जो 3 lakhs है ना सर, दिस बिलोंग्स टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स. सर समझ में आया? तो सर रेसिडुअल का क्या मतलब है सर? रेसिडुअल मतलब जब सबको पेमेंट हो जाए. सर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमने अभी जस्ट बताया सर. जो भी सर डेटा सेंटर्स होते हैं, जो ये वेंडर्स देते हैं हमें, करेक्ट सर. अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट होती है, करेक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है, करेक्ट सर. अगर सर बहुत हीटिंग हो गई है ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर, उनकी कूलिंग डाउन की कोई कॉस्ट होती होगी सर, एसीज बहुत यूज़ करते हैं ये. तो सर ऑल दिस, ये जो भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है टू अर्निंग दिस रेवेन्यू ऑफ 10 lakh विच कम्स फ्रॉम एआई एमएल एंड ऑल दिस, तो सर ये है 10 lakhs का.
करेक्ट सर। ये जो भी कॉस्ट ओवर एंड अबव हमने एक्सपेंस किया है, ये 6 लाख का है, हमने माइनस किया। सबसे पहले हमने इनको पे किया। कौन है सर ये लोग? सर ये लोग हो गए सर वेंडर, जिनके साथ हमारी डे टू डे हमारी डीलिंग्स होती है। करेक्ट सर। फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए सर, सैलरीज हम किनको पे करते हैं सर? सैलरीज तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। रेंट, यूटिलिटीज़, आने जाने का खर्चा, जो डे टू डे वाले खर्चे हैं सर, ये सब माइनस करने के बाद जो एट दी एंड रह जाता है सर, जो लास्ट में रह गया, जो रेसिडुअल है, तो जो रेसिडुअल है, दिस गोज टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब सर फॉर एग्जांपल, ये जो इन्होंने शेयर्स थे सर, इनके पास इन टोटलिटी कितने शेयर्स थे? ये थे 10,000 शेयर्स। करेक्ट। अब सर ये जो 10,000 शेयर्स थे सर, इसमें 90% वो 4 लोगों के पास था और 10% सर बाकियों के पास था। तो सर 10% ऑफ दिस इज 1,000 एंड सर बाकी इज 9,000। करेक्ट। अब ये सर जो 3 लाख है, टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं सर? वी नो सर 10,000। लेंगे तो हम पूरे शेयर्स ना, एज अ कंपनी ब्लू वेव टेक के पास तो 10,000 शेयर्स है। तो सर अब ये जो 10,000 शेयर्स है, अब सर प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी है सर? पर शेयर इज 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10,000। सर समझ में आया? बताओ सर, समझ में आया? आगे बढ़े। जो भी आएगा सर, ये 30 आएगा शायद, जो भी आएगा। तो सर 30 रुपीज पर शेयर बिलोंग्स टू द कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर 9 के शेयर जिसके पास है, 1 के शेयर जिसके पास है सर, ये उनके पास चला जाएगा। बट सर पर शेयर इसको कितना मिलेगा सर? 30 रुपीज़ मिलेगा। समझ में आया सर? आगे बढ़े सर, समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेरी? अब सर इन अ स्पेसिफिक ईयर से सर, ईयर 2 में इनका सर 10 लाख नहीं बन पाया और सर ये सिर्फ कमा पाए से फॉर एग्जांपल सर 7 लैक्स। सर 7 लैक्स कमाए, सर इनकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट वो 6 लैक्स। कितना रह गया सर? 1 लाख। सर और कोई खर्चा था हमारा सर? सैलरीज। सर ये वापस हम सैलरीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस, रेंट, यूटिलिटीज़ जो भी है हम सब पे कर रहे हैं सर। अब तो सर कुछ नहीं बचा, नील, ज़ीरो है हमारे पास। तो सर ये नील हो गया। तो सर इनको पैसा कुछ मिलेगा? नो प्रॉफिट। तो नो अर्निंग टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स सर वाई? क्योंकि सर इनका रेसिडुअल क्लेम है। इनका रेसिडुअल क्लेम है कि सर अगर कुछ रह गया, कुछ रह गया तो ही मिलेगा, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। सर समझ में आया? तो सर नो प्रॉफिट, जिस साल नो प्रॉफिट उस साल सर नो डिविडेंड। सर वी नो व्हाट इज डिविडेंड। यही जो हमने प्रॉफिट कमाया, जो हमने प्रॉफिट कमाया। समटाइम्स व्हाट कैन कंपनीज थिंक कि सर ये जो 3 लाख है सर, इसी को ही हम पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं सर, वो आधा पार्ट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करे, बाकी सर वो डिस्ट्रीब्यूट ना करे, वो री इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में। तो सर जो जो पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको हम बोलते हैं सर डिविडेंड। डी से डिविडेंड, सर डी से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो समझ में आया? हमने ये सारा हमने पढ़ा इन कॉर्पोरेट इशूअर्स का थोड़ा बेसिक्स। सर आगे बढ़े। तो सर इन केस प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सर ये रेसिडुअल क्लेम है। डोंट यू थिंक सर दिस इज वेरी रिस्की सर? रिस्की है सर, अनसर्टन है कि सर जिस दिन जिस साल प्रॉफिट हुआ तभी मिलेगा, नहीं है तो ठीक है भाई, रहन राम भरोसे हम सर। सर सेकंड, सर दे हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट या रेसिडुअल क्लेम इन एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सर व्हाट डू वी मीन बाय लिक्विडेशन? सर फॉर एग्जांपल, हमने एक एक्सट्रीम एग्जांपल लिया सर, जहाँ पे ब्लू वेव वाज अ वेरी मैसिव सक्सेस। अब सर इट वाज अ मैसिव फ्लॉप, नहीं चला सर। वैसे ही सर बहुत कंपनीज ने एआई के बारे में बहुत पहले से कर लिया सर। ओपन एआई हो गया, एनवीडिया हो गया, सर गूगल का जेमिनाई है, सर परप्लेक्सिटी है,
सर ये जो सारी एंटिटीज है सर दे आर ऑलरेडी डीलिंग इन एआई, वो उन्होंने पहले ही इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सर ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी थी सर, ब्लू वेव टेक। तो सर ये ब्लू वेव टेक का आना डिड नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज एंड सर दे वेंट इनटू लॉसेस। सर दे वेंट इनटू लॉसेस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब सर ये लॉस में ही जा रहे हैं। तो सर ये जो 4 फ्रेंड्स थे, ये कौन फ्रेंड्स है सर, कुणाल, आर्यन, रोहित और निखिल। तो सर ये जो 4 फ्रेंड्स थे, सर सोच रहे हैं यार इस कंपनी को शट डाउन ही कर देते हैं, तो क्लोज कर देते हैं। पैसे तो हम कमा ही नहीं पा रहे हैं। हमने क्या सोचा था कि हम पैसा कमाएंगे, बट सर हम पैसा तो कमा नहीं पा रहे, तो सर इसको शट डाउन कर देते हैं। तो सर जब हम शट डाउन करते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते होंगे, करेक्ट, हमारी बैंक्स के साथ डीलिंग्स होती है, हमारे कस्टमर्स के साथ डीलिंग्स होती है, हमारी कंपनी में सर एम्प्लॉयज़ होते हैं, सर उन सबको भी तो पेमेंट करनी होती है ना। सर क्रेडिटर्स को आप अपना जो भी आपने ट्रेड किया हुआ है उनके साथ आप उनको पे करोगे। बैंक्स के साथ अगर आपने कोई लोन लिया हो, एक इक्का दुक्का छोटा इधर उधर कोई लोन लिया हो फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जिसको क्या बोलते हैं सर, वर्किंग कैपिटल लोन, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। कस्टमर्स से हो सकता है कस्टमर ने पे किया हो बट आपने अभी तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है, सर वो वाले प्रोडक्ट्स, वो वाला सर्विस, या सर एम्प्लॉयज़ जो अपनी सैलरीज लेते हैं, सर आपको वो सब तो पे करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो सर उसके लिए पैसा चाहिए। तो सर जो जो भी आपकी कंपनी में एसेट्स हैं ना, सर आप इसको सेल ऑफ करते हो। तो जैसे ही आपने सेल ऑफ किया, आपको क्या मिलेगा सर, पैसा मिलेगा। अब सर यही पैसा आप यूज़ करोगे सबको पे ऑफ करने के लिए। आप सबको क्या करोगे सर, पे ऑफ, करेक्ट। अब सर ये पे ऑफ करने के चक्कर में जितना भी पैसा मिला, से फॉर एग्जांपल सर इसमें आया 15 लैक्स, ठीक है सर 15 लैक्स आया, आपको सर क्रेडिटर्स को 5 लैक्स देने थे, आपने 5 लैक्स दे दिए, सर ये क्रेडिटर्स का अमाउंट था, ठीक है सर। बैंक्स को आपने कुछ अमाउंट पे करना था सर, आपने 2 लैक्स बैंक को पे करने थे, आपने बैंक्स को पे कर दिए, ठीक है सर। आपने कस्टमर से कोई पैसा नहीं लिया था तो कस्टमर को कुछ नहीं पे करना, बट सर एम्प्लॉयज़ की 3 लैक्स की सैलरीज रह गई है अभी, एम्प्लॉई सैलरी, सर आपने ये पे किया, तो सर ये कितना ख़त्म हो गया सर, इसमें से सर 5 + 2 + 3 5 + 5 10, और सर ये हो गया सर 5 लैक्स रह गए। अब सर कुछ नहीं बचा सर, कंपनी में सब कुछ पे ऑफ हो गया है। तो सर ये जो 5 लाख है, दिस गोज़ टू सर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स विच आर नोन एज ओनर्स। सर ये ओनर्स के पास ही तो जाएगा। पहले भी तो पैसे सर उन्होंने ही उठवाए थे, या उन्होंने ही तो उठाए थे, वो 15 करोड़। तो सर जो भी अब बच गया ये 5 लाख, सर कौन इन्जॉय करेंगे, सर एक करण ज्वाइन करेंगे। सर करण कौन है सर, कुणाल, आर्यन, रोहित और निखिल, प्लस सर मिस्टर प्रसाद भी इन्जॉय करेंगे, बिकॉज दे हैव रेसिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। सर समझ में आया, सर समझ में आया यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई क्वेरी। So now we know what is equity. We know what do we mean by dilution of equity. We know the meaning of stake. We know equity का feature क्या है सर, एक very specific feature, दो specific features सर specifically, एक they have residual claim। अब सर रेसिडुअल क्लेम कहाँ कहाँ पे सर, प्रॉफिट्स में रेसिडुअल क्लेम होता है और सर एसेट्स में रेसिडुअल क्लेम होता है। सर एसेट्स में रेसिडुअल क्लेम का क्या मतलब है सर, एसेट्स जब बिक जाते हैं तब यू विल हैव अ रेसिडुअल क्लेम कि सर सब कुछ जो पे ऑफ कर दिया है, एक्सटर्नल पार्टीज़ को जो पे करना था, इंटरनल पार्टीज़ को जो पे करना था, एम्प्लॉई जैसे हो गए सर, वो तो इंटरनल पार्टीज़ हो गए, उन सबको जब आपने पे ऑफ कर दिया, जो भी रह गया सर, अब ये कौन इन्जॉय करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्जॉय करेंगे। सर समझ में आया, आगे बढ़े सर। अब सर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सर अब आप ये पूछोगे सर इतना रिस्की है ये, कितना अनसर्टन है ये, तो सर वाई डू पीपल लाइक मिस्टर प्रसाद opt for equity shareholder going for a common share, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर क्यों बनेंगे मिस्टर प्रसाद। सर इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं सर, सबसे पहला सर यू आर एबल टू वोट, आपको वोटिंग का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज यू बिकम एन ओनर, यू बिकम अ पार्ट ओनर इन द कंपनी और यू गेट द राइट टू वोट। और सर वोट से क्या होता है सर, यू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, करेक्ट सर, समझ में आया, यू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो सर जो भी कंपनी में चल रहा है सर वो आपके थ्रू ही चल रहा होगा। आगे बढ़े सर, बताओ सर आगे बढ़े। सर वोट आप कर सकते हो ऑन व्हाट स्पेसिफिक रीजन सर, इलेक्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर हमने पढ़ा था हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ओनली। जो शेयर होल्डर्स बार बार जो भी ओनर्स होते हैं सर वो उनको अपॉइंट करते हैं। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि दे हैव एन ओवरव्यू ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि वो सर जो फर्म के रिसोर्सेज हैं उसको वो अब्यूज़ ना करे, उसको ओवरली यूज़ ना करे, ताकि सर जो एक्चुअल ओनर्स है कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के सर उनको बेनिफिट ही ना मिले। तो सर इसके ऊपर ओवरसाइट रखने के लिए तो वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेंगे? सर हम ही करेंगे, हम ओनर्स जो होते हैं हम ही करेंगे सर। सर समझ में आया? सेकेंड सर, वी ऑल्सो हैव द राइट, वी ऑल्सो हैव द वोट टू अपॉइंट ऑडिटर्स। तो जो भी ऑडिटर्स होंगे हमारी कंपनी के, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, जो चेक करेंगे, एनालिसिस तो करते नहीं है सर, वो सिर्फ चेक करते हैं सर और बताते हैं कि क्या हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो वो दिखा रहे हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग। दे टॉक अबाउट द रिपोर्टिंग। तो जो रिपोर्टिंग हुई हुई है, इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। समझ में आया? एंड सर लास्टली दे वोट ऑन मेजर इवेंट्स। सर मेजर इवेंट्स मतलब सर फॉर एग्जांपल कोई अगर मर्जर होना होगा या सर कोई एक्विजिशन होना होगा, तो सर इस पे वो वोट करते हैं कि वो मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक्विजिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सर इससे ये सब करने से पहले सर किसकी परमिशन लेते हैं सर? तो सर परमिशन इज़ रिक्वायर्ड ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास इनकी परमिशन है तो सर यू कैन डू, अगर आपके पास इनकी परमिशन नहीं है तो सर आप नहीं कर सकते हो। और सर परमिशन कैसे मिलती है? थ्रू वोटिंग। कैसे मिलती है या कैसे दी जाती है? थ्रू वोटिंग। सर समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े सर, बताओ यहाँ तक कोई क्वेरी है? सर टेक 2 मिनट्स और सर इसको आपको अगर स्क्रिबल करना हो तो इसको आप लिख लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है सर, आप यहाँ से इसको ले लो, व्हाट इज इक्विटी से आप जल्दी जल्दी फटफट करते हैं एंड देन लेट अस मूव अहेड। ठीक है, हाँ जी सर आगे बढ़े। इन केस यू नॉट बीन एबल टू राइट, आपको ये एक्सेस हो जाएंगे नोट्स, है ना? तो यू कैन इवन सी इट फ्रॉम देयर। इन केस यू वांट टू कॉपी आप लिख लेना। रिकॉर्डेड वालों के लिए भी द सेम थिंग। इन केस यू वांट टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब सर ये जो हमने वोटिंग की बात करी सर, कहाँ होती है सर ये वोटिंग? वेयर डज दिस हैपन? वेयर does this voting happen? Sir, this happens in the AGM. Sir, what does AGM mean? Sir, it happens in the annual general meeting. Sir, what do we mean by the annual general meeting? Sir, as the name suggests, it is a meeting जो annually होती है सर। ठीक है, जनरल सी मीटिंग है सर। यहाँ पे सर एनुअली सर लोग मिलते हैं, जो भी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, सर दे ऑल कम टुगेदर। उनका एक गेट टुगेदर होता है सर, कंपनी के हेडक्वार्टर्स में होता होगा, या सर हो सकता है कंपनी को एक डेजिग्नेटेड जगह सोचती होगी, किसी बैंक्वेट में, किसी ओपन लॉन में, या कहीं पे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी रखे सर ये। एंड सर वहाँ पे ऑल दी शेयर होल्डर्स गेट देयर राइट टू वोट। करेक्ट। अब सर फॉर एग्जांपल मिस्टर प्रसाद जो हैं सर मिस्टर प्रसाद जा नहीं पाए, तो सर हाउ कैन ही वोट? क्योंकि वो तो फिजिकली खुद प्रेजेंट नहीं थे, तो सर ही कैन वोट वाया अ प्रॉक्सी। और सर व्हेन यू वोट वाया अ प्रॉक्सी इट इज़ नोन एज प्रॉक्सी वोटिंग। सर समझ में आया? आगे बढ़े। अब सर ये जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट है ना सर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटिंग। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटिंग। व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटिंग? सर देर आर टू टाइप्स बेसिकली सर। एक होता है स्टैट्यूटरी एंड सर एक होता है क्यूमुलेटिव। सर अभी जैसे हमने पढ़ा ब्लू वेव टेक्नोलॉजीज़ है जो ये कंपनी, सर अब ये सर 4 ओनर्स प्लस एक शेयर होल्डर, तो 5 ओनर्स की है। बट अब सर ये पूरी कंपनी, अब ये जो एक ये ब्लू वेव टेक है एज अ कंपनी सर, इसको सर रन भी तो करना है सर। करेक्ट सर, इसको मैनेज भी तो करना है, इसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए सर, इसके ऑपरेशंस होने चाहिए सर, जहाँ पे इट इज़ एबल टू सेल अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स।
करेक्ट। तो सर ये सब करने के लिए वी नीड अ मैनेजमेंट इन प्लेस, और सर उस मैनेजमेंट के ऊपर एक ओवरसाइट रखने के लिए भी सर नीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हम कर रहे हैं। अब सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए सर फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पोजीशंस, 3 डायरेक्टर्स को हमने अपॉइंट करना है, ठीक है। मिस्टर प्रसाद है सर ये। अब सर मिस्टर प्रसाद के पास 1000 शेयर्स है, हमें पता है, करेक्ट। तो सर 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ये यूजुअली होता है सर। एंड सर इस यूजुअल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर स्टैट्यूटरी वोटिंग। सर जो ये है स्टैट्यूटरी वोटिंग में क्या होता है, तो ये 1 शेयर 1 वोट का मतलब स्टैट्यूटरी वोटिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। स्टैट्यूटरी वोटिंग का मतलब होता है कि सर ये जो भी अपॉइंटमेंट होनी है, हमारे पास सर कितने हैं सर, 1 शेयर 1 वोट इंटू 1000, तो हमारे पास 1000 वोट्स हैं, करेक्ट। बट सर हमारे पास 1000 वोट्स इसके लिए हैं, 1000 वोट्स इसके लिए हैं एंड 1000 वोट्स इसके लिए हैं। तो इन टोटलिटी हमारे पास कितने हैं सर, वी हैव नॉट 1000, वी हैव 1000 प्लस 1000, करेक्ट, एंड वी हैव प्लस 1000। इसको हम छोटा कर देते हैं सर, एंड सर वी हैव प्लस 1000। तो सर हमारे पास इन टोटलिटी कितना हुआ, सर हमारे पास इन टोटलिटी हुए 3000 वोट्स, 3000 वोट्स। इन टोटलिटी वी हैव 3000 वोट्स, बट सर यहाँ पे हम सर 1000 एग्जॉस्ट कर सकते हैं, 1000 और 1000। तो मतलब सर सामने वी हैव 3000 वोट्स विच इज क्यूमुलेटिव ऑफ 1000 प्लस 1000, जो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। सर समझ में आया। सर दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी वोटिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग, सर क्यूमुलेटिव वोटिंग होती है जहाँ पे ये जो हमारे पास 3000 वोट्स है, सर हम इन 3000 वोट्स को एक ही पोजीशन पे पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमने 3000 वोट्स कर दिए और सर हम यहाँ पे और यहाँ पे वोट ही नहीं कर रहे हैं। हमने बोल दिया हमारे पास 3000 वोट्स हैं, हमने सारा जो भी राइट था हमारा वोट करने का, हमने पोजीशन फर्स्ट पोजीशन को ही वोट करने में लगा दिया है। हम यहाँ पे और यहाँ पे वोट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे वोट करेंगे। हमने 3000 वोट्स यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो समझ में आया ये। स्टैट्यूटरी वोटिंग में क्या था सर, 1000 1000 1000 सर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और सर क्यूमुलेटिव में ये सारा जो भी क्यूमुलेटिव टोटल है 3000 वोट्स का, इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, दिस इज स्टैट्यूटरी वोटिंग। बट सर अगर एक में ही हमने एग्जॉस्ट कर दिया या एक दो के कॉम्बिनेशन में एग्जॉस्ट कर दिए, तो सर उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग। सर समझ में आया। बताओ सर आगे बढ़े। सर इसका बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग, कि हम क्यों ही करते हैं। सर इससे जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, व्हाट आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सर, हु आर होल्डिंग अ स्टेक लेस देन 50%, जो लेस देन 50% स्टेक होल्ड करते हैं सर, दे आर कंसिडर्ड टू बी माइनॉरिटी, छोटे लोग हैं सर, दे आर नॉट लेस देन 51%। क्योंकि सर मोर देन 51% देन तो यू हैव मेजॉरिटी, क्योंकि फिर आप कंपनी अपने हिसाब से चला सकते हो, करेक्ट। ऑल्दो यू आर एन ओनर व्हेन यू आर अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ऑल्सो व्हेन यू आर अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बट सर व्हेन यू हैव 51% वोट्स विद यू, तो सर आप कंपनी को अपने हिसाब से रन कर पाते हो, क्योंकि यू आर होल्डिंग अ मेजॉरिटी स्टेक। 51 वर्सेज 49, सर कौन बेटर होगा सर, 51। बट सर व्हेन यू हैव 49% और एनीवेयर बिलो 51, सर यू आर कंसिडर्ड टू बी अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की भी बात सुन सके, सर ये कॉन्सेप्ट आया ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग। समझ में आया। सो सर दिस इज फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। बताओ सर आगे बढ़े। बताओ सर आगे बढ़े सर। यहाँ तक कोई क्वेरी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर छोटा सा। सर सिमिलर एक कंपनी है जिसके फाउंडर्स हैं प्लस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है सर, प्लस जनरल पब्लिक है सर जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, जनरल पब्लिक। सर इनके कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है सर,
इनके भी हम सेम ही ले लेते हैं 10,000 शेयर्स। सर फाउंडर्स का क्या स्टेक है सर? फाउंडर्स का स्टेक इज 65%। एंड सर पब्लिक का कितना स्टेक होएगा सर? 100 माइनस 65, 35%। तो सर फाउंडर्स आर होल्डिंग 65%, 6500 शेयर्स एंड जनरल पब्लिक इज होल्डिंग 3500 शेयर्स। सर समझ में आया? अब सर यहाँ पे जब इलेक्शन होना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चूजिंग का, सर यहाँ पे देर आर 4 पोजीशंस। पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी। अब सर इन टोटलिटी माइनॉरिटी होल्डर्स के पास या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स है? वी हैव 3500 शेयर्स एंड सर वी हैव द एबिलिटी टू वोट फॉर 4 पीपल। सर कितना होता है सर? 3500 इंटू 4, 14,000 शेयर्स। 14,000 शेयर्स हो गए ये। एंड सर वी हैव 14,000 वोट्स, क्योंकि सर एक शेयर पे यूजुअली एक वोट ही होता है, करेक्ट। एंड सर जो फाउंडर्स है सर, तो फाउंडर शेयर होल्डर जो है सर 6500 इंटू 4। सर 6500 इंटू 4 कितनी हो गई सर? ये हो गई सर 26,000। ठीक है, तो सर 26,000 वोट्स, करेक्ट। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। नाउ इनके पास 14,000 वोट्स है, इनके पास 26,000 वोट्स है सर, अभी भी ये ज़्यादा है। बट सर वी हैव 4 पोजिशंस ए, बी, सी एंड डी। हमें 4 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है कि सर ये इन पोजिशंस पे कौन कौन बैठेगा, करेक्ट। तो सर ये 26,000 कहीं पे भी डाल सकते हैं सर, ये 14,000 एक जगह पे एग्जॉस्ट करने को रखते हैं। दे कैन एग्जॉस्ट एक जगह पे अंडर क्यूमुलेटिव वोटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल इन केस इफ एक केस सिनेरियो ले सकते हैं सर जहाँ पे 26,000 शेयर्स हैं या 26,000 जो वोट्स थे, सर इन्होंने डिवाइड किया सर ऐसे ऐसे। सर इन्होंने पोजीशन ए में 6,000 वोट्स दिए, तो दूसरे में उन्होंने 10,000 वोट्स दिए। सर बाकियों पे उन्होंने कितने बचे सर? 16,000 हो गए। सर यहाँ पे उन्होंने 8,000 वोट्स दिए एंड सर यहाँ पे उन्होंने 2,000 वोट्स दिए। सर ये है पोजीशन ए, बी, सी और डी के लिए, करेक्ट। बट सर इन टोटलिटी हमारे पास तो 14,000 शेयर्स है, तो सर हम 14 कहीं पे भी डाल सकते हैं सर, या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। ऑब्वियसली सर और में ही आएगा, एक ही जगह पे डाल सकते हैं। बट सर इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न सर नाउ वी हैव, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि माइनॉरिटीज़ भी अपनी आवाज़ रेज कर सकता है। कल को अगर सर सिर्फ 6,000 शेयर्स हैं यहाँ पे एंड माइनॉरिटी डज नॉट वांट पोजीशन ए में कोई स्पेसिफिक बंदा आए, वो अपना बंदा बिठा सकता है। क्यों? क्योंकि सर उनके पास 14,000 शेयर्स है और यहाँ पे सिर्फ 14,000 वोट्स हैं, जबकि यहाँ पे सर सिर्फ 6,000 वोट्स थे। तो समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ, आगे बढ़े। तो सर वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग इज द क्यूमुलेटिव वोटिंग। क्यूमुलेटिव voting helps to focus votes, not spreading. We are able to sir focus all our votes on one specific position, on one specific अगर कोई वैकेंसी है, on one specific election। तो समझ में आया? बताओ सर, यहाँ तक कोई क्वेरी? एनी क्वेरी यहाँ तक? आगे बढ़े, बताओ सर। तो सर हो सकता है सर इन्होंने मिस अनन्या को जिताना था माइनॉरिटीज़ ने, एंड सर अनन्या को उन्होंने वहाँ पे एक पोजीशन दी, इलेक्ट किया सर बिकॉज दे हैड 14,000 वोट्स। सिंपल सर। नेम्स देख के सर थोड़ा बस स्पेसिफिक हो जाता है, कल को यू विल रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, अनन्या वाला एग्जाम्पल, मिस्टर प्रसाद वाला एग्जाम्पल, कुणाल, आर्यन, रोहित और निखिल वाला एग्जाम्पल। तो जस्ट गिविंग नेम्स हेल्प्स इन रिमेंबरिंग।
ठीक है, आगे बढ़े सर। तो सर व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड अभी तक कि सर इन केस वी वांट टू रेज मनी, हमने ये पढ़ा था ना सर, इन केस वी वांट टू रेज मनी, ये जो 10,000 शेयर्स है, दिस इज कॉपीड, नीचे लेकर आते हैं इसको, तो पेस्ट करते हैं सर। ये जो है हम रेज करना चाहते हैं पैसा, करेक्ट। अब सर ये हमने स्टेक रेज किया 10% अपना डाइल्यूट करके, करेक्ट। बट सर नाउ अब ये जो है कुणाल, आर्यन, पूरा पूरा नेम लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए सर। जो कुणाल है सर, आर्यन है, रोहित है, निखिल है। अब सर ये 15 करोड़ रेज करना चाहते हैं, पर सर ये जो 10% है ना सर, दे डोंट वांट टू डाइल्यूट। सर वो अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं करना चाहते, वो कह रहे कि सर हम 100% स्टेक हमारा ही होना चाहिए। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये जो भी रेड में है सर, इट शुड बी हमारा। सर हम चड्डी बडीज़ हैं सर, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं सर, हमारे पास होना चाहिए। कोई बाहर का बंदा नहीं आना चाहिए जो हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। बट सर दे ऑल्सो वॉन्ट टू रेज मनी, वो पैसा भी रेज करना चाहते हैं इक्विटी के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं सर? तो सर दिस इज अनदर ऑप्शन, अनदर वे और अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग इक्विटी विच इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे सर इक्विटी शेयर्स थे सर, हमने एक शेयर दिया आगे, एंड सर आपने स्टेक दिया, करेक्ट। आप शेयर दिया सर, पैसा मिला, इसमें सर आपको पैसा मिलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट यू विल नॉट गेट स्टेक। तो सर ये जो मिस्टर प्रसाद है, अब फॉर एग्जाम्पल सर प्रसाद नहीं लेते सर, सिद्धार्थ ले लेते हैं। तो मिस्टर सिद्धार्थ है यहाँ पे, सर मिस्टर सिद्धार्थ जाते हैं और सर वो ले लेते हैं प्रेफरेंस शेयर इन ब्लू वेव टेक, करेक्ट। सर ये ब्लू वेव टेक का ही तो था हम जो भी पढ़ रहे थे। ये जो 10,000 शेयर्स हैं, इनके पास 10,000 शेयर्स है, अब इन 10,000 शेयर्स में से कुछ डाइल्यूट नहीं हुआ है। 10,000 के 10,000 अब किसके पास है सर? 10,000 के 10,000 आर देयर विद दीज 4 पीपल, बट सर नाउ दे हैव इशूड इक्विटी शेयर्स, दे हैव इक्विटी शेयर्स टू मिस्टर सिद्धार्थ। तो सर वाई नॉट कॉमन शेयर्स? पहले तो सर कॉमन शेयर्स पढ़ रहे थे, इससे बेटर कॉमन नहीं पढ़ लेते। हमने जब कॉमन पढ़ा है तो सर कॉमन ही ले लेते। अब कह रहे नहीं सर, हमने प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें। सर वाई प्रेफरेंस शेयर्स सर, वाई प्रेफरेंस शेयर्स? सर समझते हैं सर। सर इन द नेम प्रेफरेंस, आप समझ सकते हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस? सर प्रेफरेंस का मतलब होता है सर प्रायोरिटी। सर हमने इक्विटी शेयर्स में क्या पढ़ा था सर? इक्विटी शेयर्स में या कॉमन इक्विटी शेयर्स में, कॉमन इक्विटी शेयर्स में क्या पढ़ा था सर? यू हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट, या रेसिडुअल क्लेम होता है आपका ऑन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स, करेक्ट। एंड सर इसके वजह से, क्योंकि ये थोड़ा कम मिलता है आपको, बाद में मिलता है, तो आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए या आपको कॉम्पनसेट करने के लिए सर यू गेट द राइट टू वोट, करेक्ट। सर हमने यहाँ तक तो समझा था, इन शॉर्ट ये मतलब था। बट सर प्रेफरेंस शेयर्स में यू गेट प्रायोरिटी ओवर प्रॉफिट्स, यू गेट प्रायोरिटी ओवर एसेट्स, करेक्ट। एंड सर देन यू डोंट गेट द एबिलिटी टू वोट, यू डोंट गेट द एबिलिटी टू वोट। तो सर कहीं ना कहीं तो इक्वेशन लानी पड़ेगी ना सर, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिल रही है सर। पहले अगर किसी का भी पैसा पे किया जाएगा, बाहर लोगों का पे किया जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा पहले आपको मिलेगा, उसके बाद कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो पहले पहले मिस्टर सिद्धार्थ को मिलेगा, उसके बाद मिस्टर प्रसाद को मिलेगा। एंड सर बाद में अगर एसेट्स कल को बिकते हैं, कंपनीज का जो भी एसेट्स सेल ऑफ होते हैं, जो भी पैसा आएगा, तो सर ये जो भी सारा पैसा पहले सर मिस्टर सिद्धार्थ को जाएगा, पहले मिस्टर सिद्धार्थ को जाएगा, उसके बाद मिस्टर प्रसाद को जाएगा। सर समझ में आया ये? एंड सर इसको इक्वेट करने के लिए सर दे विल नॉट गेट द राइट टू वोट।
तो यूजुअली जब इनको प्रॉफिट्स मिलते हैं ना, सर दे गेट फिक्स्ड डिविडेंड। तो फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब सर 8 रुपीज़। तो सर इनको पता है हर साल इनको 8 रुपये मिलने ही मिलने हैं। तो समझ में आया? बताओ सर, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ। आगे बढ़े सर। बताओ सर। अब सर जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं सर। कौन सा एग्जाम्पल सर? प्रायोरिटी। पहले हमने रेसिडुअल क्लेम लिया था, अब हम प्रायोरिटी क्लेम लेंगे। सर प्रायोरिटी क्लेम वाला कौन सा एग्जाम्पल था सर? वो 10 लैक्स थे माइनस 6 लैक्स, करेक्ट सर। बचे 4 लैक्स। सर उसमें से भी जो जो सैलरीज थी, रेंट, यूटिलिटीज़ सारा पे किया, सर कितना बचा सर? 3 लैक्स। अब सर इस 3 लैक्स में से सर सबसे पहले मिस्टर सिद्धार्थ को पे किया जाएगा, फिर सर मिस्टर प्रसाद को पे किया जाएगा। तो सर व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सर प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है। सर पहले मिस्टर सिद्धार्थ को, फिर प्रसाद को। तो हो सकता है सर अगर मिस्टर सिद्धार्थ ने हो सकता है 500 शेयर्स होल्ड करे हों, एंड जो ये डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, हमने बोला सर 8 रुपीज़ फिक्स डिविडेंड है। 8 रुपीज़ फिक्स डिविडेंड है सर। 500 इंटू 8 कितना होता है सर? 40। तो सर 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ सर सबसे पहले मिस्टर प्रसाद को जाएगा, बाकी सब किसी और को जाएगा। तो समझ में आया? बताओ सर, समझ में आया? आगे बढ़े। बताओ सर, आगे बढ़े। कोई क्वेरी है? सर 4000 पहले जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ को, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है 3 लैक्स में से, ये सर सब कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। उसमें से एक कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर कौन है सर? मिस्टर प्रसाद। तो समझ में आया? आगे बढ़े। सिमिलरली सर जो हमारा एग्जाम्पल 2 था, उसमें हमारा सर 7 लैक्स का था प्रॉफिट रेवेन्यू, माइनस सर 6 लैक्स का खर्चा था, माइनस 6 लैक्स हमने किए, माइनस सर हमने एक और लैक माइनस किया जो भी हमारा रेंट, यूटिलिटी, सैलरी था। तो सर यहाँ पे वी वर लेफ्ट विद नो प्रॉफिट, करेक्ट। अब सर प्रॉफिट तो नहीं है, हम 8 रुपीज़ फिक्स डिविडेंड पे भी नहीं कर सकते। तो सर ये डिविडेंड का क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सर वी शुड नो ये 8 रुपीज़ का डिविडेंड अब आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना हो सकता है, करेक्ट। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं सर? अगर डिविडेंड नहीं है हम आपको कुछ नहीं देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हैं कि इस साल अब पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो हम कुछ नहीं दे सकते। अगले साल अगर आएगा तो सबसे पहले हम आपको देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम फिर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। सर समझ में आया? ये बताओ। बताओ सर, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेरी है? सिमिलरली सर जो हमारा एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल था सर? प्रायोरिटी क्लेम इन एसेट्स। सर 15 लैक्स हमारा एग्जाम्पल था, तो 15 लैक्स में से माइनस हुआ था 5 लैक्स, करेक्ट। फिर सर माइनस हुआ था 2 लाख, फिर सर माइनस हुआ था हमारा 3 लाख। तो कितना रह गया था सर? हमारे पास 5 लैक्स रह गए थे। तो सबसे पहले 5 लैक्स में से सर सिद्धार्थ ने जो जो भी पैसा दिया था कंपनी में, जो उसने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि सर उसने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, उसने पैसे दिए होंगे, तो सर वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे क्योंकि अब कंपनी बंद हो रही है। तो सर सबसे पहले सिद्धार्थ को पे ऑफ करेंगे ये। फिर सर अगर कुछ रह गया, हो सकता है सर सिद्धार्थ ने कितना इन्वेस्ट किया था सर? सिद्धार्थ ने 4,50,000 इन्वेस्ट किया था। तो सर ये सारा 4,50,000 सर पहले सिद्धार्थ ले लेगा, जो बचा हुआ 50,000 है, जो बचा हुआ 50,000 है सर फिर मिस्टर प्रसाद लेगा। सर समझ में आया? बताओ सर। तो सर इज प्रेफरेंस शेयर्स देन रिस्की? हम ये बोल सकते हैं सर इट इज लेस रिस्की, थोड़ा स्टेबल तो है सर, इट इज अ बिट स्टेबल, इट इज लेस रिस्की। सर क्यों सर? वाई लेस रिस्की सर? क्योंकि नो प्रॉफिट, तो इनका भी नो डिविडेंड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जब इनको डिविडेंड मिलता है तो सर, जब मिलता है तो सर तब फिक्स डिविडेंड मिलता है। सर समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेरी है? आगे बढ़े।
बताओ सर, आगे बढ़े यहाँ तक, मतलब यहाँ से आगे बढ़े, कोई इशू? शैल वी मूव अहेड? अब सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास, तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सर ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टिंग या गेनिंग एक्सपोजर इन इक्विटी, इन इक्विटीज। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक? सर आप ये लिख लो यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने सर कहाँ तक लिखा था? यहाँ तक। ये लो सर, इसको लिखो एंड देन वील मूव अहेड। यहाँ तक कोई क्वेरी है? बताओ सर, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो सर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सर? ठीक है सर, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर टाइप्स ऑफ, हम पढ़ेंगे सर, नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर, यहाँ तक वी अंडरस्टूड द स्टोरी। सर हमें इन्वेस्ट अगर करने हैं किसी कंपनी में, कोई कंपनी है, तो सर हम कैसे इन्वेस्ट करते सर, कर सकते हैं सर? कॉमन इक्विटी शेयर्स के थ्रू या सर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू? करेक्ट, तो समझ में आया? हमने सर कॉमन इक्विटी शेयर्स में क्या पढ़ा था? वी आर अंडरस्टूड अबाउट स्टैट्यूटरी वोटिंग एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग। अब प्रेफरेंस शेयर्स में वी आर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स। दिस इज द एंटायर चैप्टर जो हम अभी कर रहे हैं सर। इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स सर, डिफरेंट कैटेगरीज में दिए हुए हैं सर। हम कैटेगरीज बांध लेते हैं सर। फर्स्ट है सर क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है सर, समझ में आया? सर फिर आता है सर कॉलेबल वर्सेस पुटेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फिक्स्ड इनकम में भी बहुत काम आएगा। फिर सी आता है सर पार्टिसिपेटिव वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिव। सर समझ में आया? एंड सर लास्टली हम एक पढ़ते हैं सर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर समझ में आया? आगे बढ़े सर। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये सर वैसे तो फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट होगा ये, या मे बी यू वुड हैव डन इट पहले। तो सर दिस इज जस्ट अ टर्म, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। क्या होता है सर रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल? मैं बता देता हूँ सर। तो रिडीमेबल या रिडीम का मतलब क्या होता है सर? रिडीम का मतलब होता है रीपे। अब सर यू एज एन इन्वेस्टर, मिस्टर प्रसाद, मिस्टर सिद्धार्थ, कोई भी सर, सिद्धार्थ है सर, इसने ब्लू वेव में इन्वेस्ट किया। तो कितने इन्वेस्ट किया सर? 4,50,000 इन्वेस्ट किए वाया प्रेफरेंस शेयर्स। इसको प्रेफरेंस शेयर्स मिले थे ये, करेक्ट? तो सर ये 4,50,000 इसने कंपनी को दिए हुए हैं, कंपनी ने इसको प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं विच आर वर्थ 4,50,000, करेक्ट? अब सर मे बी आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years, अब ये बोलता है कि सर आई डोंट वांट टू बी पार्ट, आप मेरे शेयर्स रिडीम कर दो। तो समटाइम्स सर दे हैव दिस प्रोविजन, कंपनीज हैव दिस प्रोविजन, जहाँ पे सर वो आपको 4,50,000 वापस दे देंगे। ठीक है, दे विल रीपे यू 4,50,000, रीपे कर देंगे आपको। एंड सर आपको वापस प्रेफरेंस शेयर्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे इनके पास। करेक्ट सर, समझ में आया? सर समझ में आया ये प्रेफरेंस शेयर? ये सर कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन कॉमन इक्विटी शेयर्स। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्यों सर? यू आर ओनर्स। सर ओनरशिप को आप कभी बोल सकते हो कि सर ओनरशिप मैं नहीं ले रहा हूँ। सर यू आर एन ओनर। आप नहीं बोल सकते कल को कि सर नहीं नहीं मैं, जब तक आपने सेल नहीं किया। आप सेल कर दो, ये कॉमन जो इक्विटी शेयर है आपके पास, सर आप इसको सेल कर दो किसी को,
देन आप बोल सकते हो कि ठीक है सर आई एम नॉट एन ओनर, बट यू कैन नॉट आस्क रीपेमेंट क्योंकि सर आप ही का तो बिजनेस है, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर अ पार्ट ओनर उसमें, करेक्ट। तो सर जैसे कुणाल है, आर्यन है, रोहित है, निखिल है, सर दे कैन नॉट से कि हमने सर जो आपने पैसा डाला हुआ है वो हमें पैसा वापस दे दो, हम जा रहे हैं। सर आप चले गए तो कंपनी बंद ही हो जाएगी क्योंकि यू आर ओनली रनिंग द कंपनी, यू आर द मेन ओनर्स। प्लस सर मिस्टर प्रसाद इज ऑल्सो द सेम, जो भी कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं सर, उनका यही रोल होता है, दे प्रोवाइड परपेचुअल कैपिटल, दे प्रोवाइड परपेचुअल कैपिटल, इट इज़ फॉर गुड, ये रीपे नहीं होता है। तो समझ में आया है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, रीपे नहीं होता है। हाउएवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिडीमेबल इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कभी आ सकता है, हो सकता है कभी ना भी आए। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल पासर बाय कॉन्सेप्ट दैट आई जस्ट वॉन्टेड कि वी शुड बी अवेयर। आगे बढ़े सर। फिर आता है सर पहली कैटेगरी, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। Cumulative versus non-cumulative. Sir, as the name suggests, cumulative. What do we mean by cumulative? Sir, cumulate होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो सर ये स्टैक होता रहता है, स्टैक होता रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे स्टैक होता है। तो सर जो हमने पढ़ा था सर, 8 रुपीज़ का डिविडेंड आपको पे करना है, जो आपको पे करना है, एक पर्टिकुलर ईयर में आपका लॉस था, तो सर दिस इज प्रॉफिट दैट वी आर पेइंग ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है सर, इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो सर आपने पे ही नहीं किया, आपने पे ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि सर आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आपका तो लॉस था, ठीक है, आपका लॉस था तो प्रॉफिट था नहीं, तो आपने पे ही नहीं किया, सिंपल। बट सर दिस 8 रुपीज़ इज क्यूमुलेटिव। अब हो सकता है सर दिस इज फॉर ईयर 2019, करेक्ट सर, ईयर 2020 कोविड ईयर, सर फिर से आपको पे करना था ₹8, बट यहाँ पे भी लॉस हो गया। सर ईयर 2021 में आपका प्रॉफिट हो गया बढ़िया सा, यहाँ पे भी लॉस था। तो सर ये जो 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ यहाँ पे पेंडिंग थे, सर सेम यहाँ पे भी 8 रुपीज़ पेंडिंग थे। अब सर यहाँ पे जब आप डिविडेंड पे करोगे, जब आप यहाँ पे डिविडेंड पे करोगे, तो सर सबसे पहले आप 16 रुपये पे करोगे, फिर आप कुछ और पे करोगे। तो सर ये जो 16 रुपये हैं, ये जो 16 रुपये हैं, दिस इज 8 + 8। तो ये जो डिविडेंड था सर, ये क्यूमुलेट हो रहा था ओवर टाइम, क्यूमुलेट एवरी ईयर। सर समझ में आया, ये क्यूमुलेट हो रहा था। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सर डिविडेंड लॉस्ट, जो डिविडेंड आपने मिस कर दिया है, मिस्ड इज इक्वल टू लॉस्ट। जो मिस हो गया सर वो चला गया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगले साल जब होएगा, अगले साल जैसे 2019 में सर लॉस हो गया, तो सर आपके पास कुछ नहीं मिला। तो 2020 में अगेन लॉस हुआ, कुछ नहीं मिला। अब सर यहाँ पे जो 21 होगा सर, पहले आपको ₹8 पे किया जाएगा, पहले आपको 8 रुपीज़ पे किया जाएगा, क्योंकि ये इस साल का है ना। किसी भी साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो सर पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और सर प्रायोरिटी मिल भी रही है, हमने पहले ही बोल दिया है कि सर व्हेन वी आर पेइंग यू, सर हम आपको कितना पे करेंगे, 8 रुपीज़ का फिक्स डिविडेंड पे करेंगे ही करेंगे। तो 8 रुपीज़ पे करेंगे प्लस, बट आपको सर कोई प्रीवियस पेमेंट नहीं मिलेगी, प्रीवियस आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। दिस इज नोन एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर समझ में आया? बताओ सर, बताओ सर। क्यूमुलेट, सर इट एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम। बताओ सर, समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। सर नेक्स्ट इज अ बिट टेक्निकल कॉन्सेप्ट, कॉलेबल वर्सेस पुटेबल कॉन्सेप्ट। सर वैसे इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, आई विल टेल यू, बट आई एम वांटिंग टू ऐड मोर टू इट, ताकि आपका एक फिक्स्ड इनकम का भी कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय कॉलेबल? सर कॉलेबल मतलब टू बाय, और पोर्टेबल मतलब टू सेल। कैसे? आई विल टेल यू। दिस इज अ राइट टू बाय। अभी सर बस इतना ही समझो, इसमें आप, देर आर मोर नुअंसेस, देर इज मोर
ग्रैनुलर लेवल पे हम जा सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉलेबल. सर कॉलेबल का मतलब होता है राइट टू बाय. सर फॉर एग्जांपल वी हैव मिस्टर विहान. ठीक है सर, उनके पास ही हैज़ टेकन अ कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर. ये सर हम सारा प्रेफरेंस शेयर के ही तो टाइप्स पढ़ रहे, तो ही हैज़ अ कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, ये कंपनी ने इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ का एक शेयर हमने खरीदा है. ठीक है, अब सर ये जो 100 रुपीज़ का शेयर है ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मिस्टर विहान के पास है ये शेयर, मिस्टर विहान के पास ये शेयर है. करेक्ट. अब सर द कंपनी जो है ब्लू वेव, जो ब्लू वेव टेक है सर, इट हैज़ द राइट टू बाय बैक. बाय बैक का मतलब क्या है? कॉल. तो सर मिस्टर विहान को कॉल करें, मिस्टर विहान आपके पास हमारा जो एक शेयर है ना, आप हमें वापस दे दो, हमें वापस चाहिए. तो सर दे हैव दिस राइट. बिकॉज दे हैव दिस राइट, दिस इज नोन एज अ कॉलेबल शेयर. सर राइट किसके पास है सर? हु हैज़ द राइट? फिर पेंसिल में सर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको स्क्रिबल कर लो साइड बाय साइड. सर किसके पास राइट है? राइट किसके पास है? राइट इज विद द कंपनी, इस केस में ब्लू वेव. तो समझ में आया? द राइट इज नॉट विद द राइट इज नॉट विद मिस्टर विहान, विद नॉट द इन्वेस्टर, इट इज विद द कंपनी. सर समझ में आया? ये आगे बढ़े. सर समझ में आया? अब सर अनदर टाइप जो था सर, दिस इज पुटेबल. सर पुटेबल का क्या मतलब होता है सर? दिस इज अ राइट टू सेल. देर इज अनदर इन्वेस्टर मिस्टर सर्वम. सर मिस्टर सर्वम एक इन्वेस्टर है सर, उसके पास एक पुटेबल शेयर है. सर पुटेबल शेयर का क्या मतलब होता है सर? ये जो मिस्टर सर्वम है, कल को इसने खरीदा था शेयर एट 100 रुपीज़. कल को अगर जो स्टॉक मार्केट है इट गोज़ इन अ डाउन ट्रेंड, या इट गोज़ थ्रू अ डाउन टर्न कि सर बहुत ही गंदा सीन चल रहा है सर, कोविड आ गया सर, डीमोनेटाइजेशन हो गई सर, देयर इज़ वॉर दैट इज़ हैपनिंग. तो सर कुछ ना कुछ बार बार आए जा रहा है, आए जा रहा है. वैसे सर कंपनी जो ब्लू वेव टेक है, ब्लू वेव टेक एज अ कंपनी इज़ अ सॉलिड कंपनी, उसमें कोई इशू नहीं है. बट सर मार्केट, जो मार्केट सेंटिमेंट है, लोगों का परसेप्शन है, जनरल पब्लिक का जो इनसाइट है सर, वो डिक्लाइनिंग है, वो रिड्यूस हो रहा है. कुछ भी हो सकता है सर, रूमर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो सर उनका जो अप्रोच है टू द कंपनी इज गोइंग डाउन. तो वो सोच रहे हैं कि यार इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, अच्छी कंपनी नहीं है ये. विच इज़ ओके सर, एवरी वन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस. तो बट सर ये अब जनरल मार्केट सेंटिमेंट हो गया है. अब सर जो ये 100 रुपीज़ का प्राइस था सर, ये गिरते 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 सर 85 का हो गया है. सर व्हाट डू यू मीन बाय पुटेबल शेयर? पुटेबल शेयर मतलब मिस्टर सर्वम, ही हैज़ द राइट, ही हैज़ द राइट टू सेल दिस शेयर टू द कंपनी बैक. जो कंपनी को शेयर बाय कर सकता, सेल कर सकता है एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस. 100 हो सकता है या 150 हो सकता है, किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं सर. कोई मेंशन्ड प्राइस नहीं है, वो मेंशन्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में होगा. समझ में आया सर? 150 हो सकता है, 100 हो सकता है. तो सर यहाँ पे हु हैज़ द राइट? यहाँ पे द राइट इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर. सर समझ में आया? बताओ सर, आगे बढ़े. यहाँ तक कोई क्वेरी है? सर यूजुअली आई टेल यू, कॉलेबल शेयर्स कब होते हैं? कॉलेबल शेयर्स व्हेन डू वी बाय देम? सर दिस इज नॉट पार्ट वेरी स्पेसिफिकली ऑफ इक्विटी या फिक्स इनकम का पार्ट है, इसलिए आई विल नॉट मेक नोट्स ऑफ दिस. मैं ये पेन के थ्रू ही बनाऊंगा, एंड एक बार मैं पेन उठाऊंगा तो देन ये चला जाएगा. ठीक है, तो अब सर ये देखो चला गया. तो सर आपको अगर लिखना हो तो साइड बाय साइड आप लिख लेना, बट आई एम नॉट वांटिंग टू कीप इट इन मेन नोट्स, इट विल जस्ट कंफ्यूज एवरीवन. ठीक है, तो इट इज़ अ बिट टेक्निकल बट लेट अस अंडरस्टैंड. सर कॉलेबल शेयर्स क्या होते हैं सर? इनका रोल क्या है? इनका रैशनल क्या है? हम क्यों करते हैं? सर द बुक सेज कॉलेबल शेयर्स आर इशूड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल. सर इसका क्या मतलब है सर? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल का क्या मतलब है?
सर 2019-20 चल रहा है, करेक्ट। ब्लू वेव टेक है सर, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, दीज आर कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। उन्होंने 100 रुपीज़ का उन्होंने सेल करा है। उनको क्या लेना था सर, 15 करोड़ उनको रेज करने थे, ठीक है। सर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था सर, वो हो सकता है सर, वो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट था उस टाइम, मार्केट इंटरेस्ट रेट वो था सर 12%। तो सर अगर ये 15 करोड़ रेस करते, इनको उस पर 12% पे करना पड़ता है एटलीस्ट पर एनम, तो पर एनम तो लेते ही हैं सर। तो 15 करोड़ का 12% तो 1.5 करोड़ प्लस ही कुछ होगा, तो समझ में आया, 10.2%। तो आपको 15 करोड़ पे आपको 12% पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट, करेक्ट सर, समझ में आया। तो सर इनको लगता है कि सर इतना पैसा पता नहीं यार, हमें मिले ना मिले, हम हमारा बिजनेस बनेगा भी या नहीं बनेगा, इससे बेटर सर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या बेनिफिट है सर, हमें डिविडेंड तभी पे करना पड़ेगा जब हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं है तो सर डिविडेंड नहीं पे करेंगे, करेक्ट। तो सर इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दी, जिसको प्रेफरेंस शेयर्स लेने आप प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, जिसको कॉमन शेयर्स लेने आप कॉमन शेयर्स ले लो। वोटिंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सर सब सेम, तो समझ में आया। अब सर आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है सर, आफ्टर 5 ईयर्स, अब ये सर नेक्स्ट स्टोरी है सर। आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है, दैट इज़ 2024 टू 25 में क्या होता है सर, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, इट फॉल्स टू सर से 6%। कहाँ सर, पहले 12% था, नाउ इट हैज़ फॉलन टू 6%। सर इतने टाइम में सर वो हो गया, वॉर हो गई, कोविड हो गया, तो सर सबका ना व्यू पॉइंट बहुत नेगेटिव है। तो नेगेटिव व्यू पॉइंट में बोलते हैं सर आप बेयर मिनिमम ही दे दो, इसलिए ये 12 हैज़ गॉन डाउन टू 6, करेक्ट। अब सर जो कंपनी है ना, कंपनी के जो प्रमोटर्स थे सर, करण हो गए, करण हो गया, और कौन था सर, आर्यन हो गया, रोहित हो गया, निखिल हो गया, निखिल हो गया। तो सर ये 4 लोग क्या सोचते हैं सर, ये जो हमने शेयर्स इशू करे हुए हैं, इनको हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है बार बार, करेक्ट। और अगर नहीं भी पे करना पड़ता है सर, क्यूमुलेटिव शेयर्स आइए, ₹8 हमें हर साल पे करना पड़ता है, नहीं है तो +8, नहीं है तो +8, नेक्स्ट टाइम जब भी पे करेंगे इनको +8 करके पे करना पड़ेगा, करेक्ट। इससे बेटर क्या है, जो हमने ये 15 करोड़ के जो शेयर्स इशू करे थे ना सर, इसको हम बाय बैक कर लेते हैं, हम कॉल कर लेते हैं कि इन्वेस्टर साहब, आपके पास जो जो शेयर्स है ना, आप हमें वापस दे दो। हमें अब इक्विटी शेयर्स जो है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, हम ये रिडीम कर रहे हैं, हम आपको पैसा वापस दे देंगे, हम आपको पैसा वापस दे देंगे, हम रीपे कर देंगे, आपको रिडीम कर देंगे, ठीक है। आप हमें प्रेफरेंस शेयर्स वापस दे दो। अब प्रेफरेंस शेयर्स वापस मिल जाएंगे तो हमें डिविडेंड जो है वो भी नहीं पे करना पड़ेगा इस पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे, करेक्ट सर। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई। तो सर अब ये 15 करोड़ ये पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, करेक्ट। अब सर ये 15 करोड़ से कहाँ से लेकर आएंगे सर, ये एक लेंगे लोन, बैंक से लेंगे या कहीं से भी लेंगे। सर पहले इन्होंने लोन क्यों नहीं लिया, पहले भी तो इन लोन का ऑप्शन था इनके पास सर। पहले लोन का सर इंटरेस्ट रेट 12% पे करना पड़ता, अब 6% पे करना पड़ता। तो सर इनको ये अब 6% इज लुकिंग बेटर सर। बिजनेस हैज़ ग्रोन ओवर टाइम, 5 साल हो गया है, मेच्योरिटी आ गई है, अब इनको पता चल रहा है कि सर बिजनेस के नुएंसेस क्या होते हैं, कैश फ्लोज आने लग गए हैं, बिजनेस स्टेबल हो गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गो इनटू कंसिडरेशन। पहले आउट ऑफ अ सडन सर ये 12% नहीं पे कर पाते 15 करोड़ का, करेक्ट। आगे बढ़े सर, समझ में आया। तो सर अब क्या कर रहे हैं सर, अब ये 6% पे ये इन्होंने 15 करोड़ का लोन ले लिया है। तो सर जो इन्होंने हमने कॉल किया, तो अब ये शेयर्स के बजाय दे हैव अ लोन। तो अब कोई प्रेफरेंस शेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब सिर्फ हमारे पास एक लोन है। तो सर व्हेन इज इट बेटर सर, व्हेन डू कॉलेबल शेयर्स हैपन, यूजुअली कब होता है सर, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था सर ये, आई थॉट आई शुड शेयर। तो दस ये सब हम पढ़ेंगे सर इन फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में सर जब हम लोन लेते हैं तो क्या सोच सोच के लोन लेंगे, क्या दिमाग में रहेगा सर, हमारा क्रेडिट वर्दीनेस आएगा सर इन माइंड, सर ये वापस पे बैक कर भी पाएगा या नहीं,
हमारा कैपेसिटी आएगा, हमारी, सॉरी फॉर द वर्ड बट सर, क्या हमारी औकात भी है पे करने की? सर हम 15 करोड़ ले तो लेंगे एज अ कंपनी, कैन वी रीपे 15 करोड़, कैन वी रीपे इसका जो इंटरेस्ट होगा? तो सर देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सर समझ में आया? हमारी इस देर हमारी कोई क्रेडिबिलिटी है मार्केट में कि सर हम सबसे हम HDFC से लेते हैं लोन तो डिफ़ॉल्ट मार देते हैं, ICICI से लोन लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट मार देते हैं। तो सर देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू टेक अप अ लोन। तो सर हम ये सब पढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम में। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो सर ये समझ में आया सर, कॉलेबल पुटेबल। इफ़ यू आर आस्किंग सर ये सब कॉलेबल पुटेबल के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में था? नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर फिक्स्ड इनकम। ठीक है, आगे बढ़े। बट ये आगे इक्विटी की चैप्टर्स में आ सकता है, आपको मैंने पहले बता दिया है, ये आगे इक्विटी वाले चैप्टर्स में आ सकता है, इस चैप्टर में नहीं है बट आगे वाले चैप्टर्स में आ सकता है। ठीक है सर, अब आता है सर पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स? इसमें क्या होता है सर, पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब होता है सर? जो हमने पहले बोला था सर, फिक्स आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको फिक्स डिविडेंड जो 8 रुपीज़ का मिल रहा है वो तो सर मिलेगा ही मिलेगा। बट सर अगर कंपनी ने बहुत अच्छा कर लिया सर, ये जो ब्लू वेव है सर, दिस हैज़ बिकम अ मैसिव सक्सेस, तो सर बहुत बढ़िया कर लिया है, तो सर इनको प्लस कुछ एडिशनल डिविडेंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, इनको कुछ एडिशनल डिविडेंड्स भी मिलते हैं व्हेन द कंपनी परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनली वेल। समझ में आया? करेक्ट। एंड सर नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब है सर? इनको सिर्फ फिक्स्ड एट जो है सिर्फ वो मिलेगा बस, इनको और कुछ नहीं मिलेगा। तो सर व्हाट आर दे सेड, इनका नाम क्यों पड़ा है सर पार्टिसिपेटिंग? बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। तो समझ में आया, दे पार्टिसिपेट इन दी एडिशनल प्रॉफिट्स। अब सर एक कॉन्सेप्ट आता है लास्ट विच इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं सर? सर अब जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, आपको 8 रुपीज़ का डिविडेंड मिलना ही है, करेक्ट? आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब सर यू कैन, आपकी मर्जी पे, आपके ऑप्शन पे, आपके कंफर्ट पे, यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इनको कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि सर वी नो प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ उतना ही मिलता है, फॉर एग्जाम्पल सर 8 रुपीज़ है तो सर 8 रुपीज़ ही मिलेंगे, 8 रुपीज़ है तो सिर्फ ओनली 8 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बट सर अगर कंपनी हैज़ एन एक्सेप्शनली वेल एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट मोर इन प्रॉफिट्स, तो सर आप बोलोगे सर आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन इक्विटी शेयर्स। सर कॉमन इक्विटी शेयर्स के पास सर क्योंकि जो भी रह जाता है सर दे हैव रेसिडुअल क्लेम, करेक्ट? तो सर दे हैव रेसिडुअल क्लेम एंड सर दे हैव मेड मैसिव प्रॉफिट्स। मैसिव मतलब मैसिव, इनकी इस बार सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज़ गॉन सर, हैज़ ब्लोन अवे सर, बॉलीवुड में इनकी बातें हो रही है, हर जगह पार्लियामेंट में इनकी बातें हो रही है, सो प्रॉफिट्स आर नेक्स्ट लेवल सर। तो सर इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोज प्रॉफिट्स सर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन कॉमन इक्विटी शेयर्स। वो कॉमन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए यू गेट दिस ऑप्शन नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर इसका एक बेनिफिट होता है, बल्कि सर इसके 2 बेनिफिट होते हैं। डुअल बेनिफिट होता है इसका। सर क्या डुअल बेनिफिट होता है? तो डुअल बेनिफिट है कि सर डाउनसाइड और अपसाइड दोनों में यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। डाउनसाइड रिस्क, अगर डाउनसाइड रिस्क है, आपको लगता है कल को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होंगे, तो सर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहो, आप चेंज मत करो अपने आप को, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहो। बट सर अगर आपको लगता है सर अपसाइड बहुत अच्छा होने वाला है, करेक्ट, अपसाइड मतलब कंपनी तो अब सर फोड़ेगी, बहुत अच्छा बनेगा, तो सर यू कैन कन्वर्ट एंड बिकम अ कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट? तो सर आपके पास ऑप्शन होता है सर, आप डाउन साइड में भी आप सेफ खेल सकते हो, अप साइड में भी सेफ खेल सकते हो, बट ऑब्वियसली सर दिस इज अ वन टाइम ऑप्शन, आप एक ही बारी इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। सर समझ में आया? आगे बढ़े। ऑलवेज ऑलवेज सर कीप दिस इन माइंड, इफ रिस्क इज हाई रिटर्न विल बी हाई,
सर ये तो बेसिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है सर। आप ज़्यादा रिस्क तभी तो लोगे व्हेन यू आर गिवन दिस एक्सपेक्टेशन कि यू विल बी एबल टू अर्न मोर। देयर इज नो गारंटी, बट एटलीस्ट देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि यू विल बी एबल टू अर्न मोर। और सर अगर रिस्क कहीं पे लो होगा तो सर वहाँ पे रिटर्न भी लो होगा। सर समझ में आया? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर यहाँ पे प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस क्या होता है सर? जब हम खरीदेंगे तो सर अगर बहुत रिस्की चीज़ होएंगे, सर सब लोग खरीदते हैं रिस्की चीज़, नहीं सर। तो सर यहाँ पर प्राइस रिस्की चीज़ का लो होता है। बहुत सारे लोग नहीं लेते, ऐसे ही पड़े होते हैं, कोई नहीं लेता। बट सर अगर कोई रिस्क कम वाली चीज़ है, बहुत कम रिस्क है, तो सर इसका यूजुअली प्राइस बहुत हाई होता है, क्योंकि सर सब यहीं पे आते हैं। क्योंकि सर कल को कुछ भी होगा, कोई भी डाउन टर्न आएगा, कुछ कोविड फिर से होगा, कोई वॉर अगर फिर से हुई, कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, कुछ भी हुआ, तो सर दे आर सेफ गार्डेड थ्रू रिड्यूस्ड रिस्क। तो समझ में आया? तो इसलिए सर प्राइस, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर समझ में आया? आगे बताओ सर, आगे बढ़े? कैन वी मूव अहेड? यहाँ तक कोई क्वेरी है? आगे बढ़े सर? आगे बढ़ते हैं सर विद अ ब्रेक। लेट अस गो फॉर शॉर्ट ब्रेक। आई ऑल्सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई होप सर यहाँ तक आपको समझ में आया हो। बताओ, लेट मी नो अगर कोई इशू है यहाँ तक। सर यहाँ तक कोई इशू है? 1 मिनट सर। अब बेटर है, अब बेटर है, सॉरी सर। यस, वो वायर थोड़ी हिल गई थी। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई इशू है? बताओ। कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े? लेट अस गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, एनीथिंग, लेट मी नो। सर वी हैव एंडेड इट ओवर हेयर अभी तक, हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सर।